Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चे. Today we are going to cover this topic which name is pronoun. So noun से relate करता हुआ pronoun लग रहा है ना आपको? So उसी से relate करता हुआ combination है, थोड़ा थोड़ा आपको noun का भी मिलेगा इसके अंदर. So let's begin बच्चे. Read the following stories and fill in the blanks with appropriate words. Appropriate words के साथ आपने इस story को fill up करना है. Then last year we went to Ankara to meet Dash grandparents. Dash were very glad to see Dash. In the afternoon, I went for swimming with my brother. Dash swims well. Dash had picnicked all together. My grandma made sandwiches for Dash. And Dash makes really very delicious sandwiches. In the morning, Dash had breakfast in the garden. And Dash was full of flowers. There were ducks and hens in the garden. Dash played with them. Dash were very lonely. Dash was really a very wonderful vacation. Words like I, we, you, they, he, she, it, etc. help us avoid unnecessary repetitions in our writing and speech. They are used as a substitutions for a noun. So यहाँ पर क्या बताया गया बच्चे, जो ये फिलअप है वो कैसे फिलअप कर पाएंगे, तो आपने इन वर्ड्स की हेल्प से करना है. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट की हेल्प से. क्योंकि यहाँ पर अगर बार बार आप क्या करेंगे, किसी वर्ड का, किसी मैन, थिंग, ऐसी चीज़ों का नाम रिपीट करते रहेंगे बार बार, तो वो उन चीज़ों को हटाने के लिए प्रोनाउंस का यूज किया जाता है. और प्रोनाउंस ये वाले वर्ड्स होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस. सो आगे हम पढ़ भी लेते हैं इसकी डिफाइन को भी. प्रोनाउन होता क्या एग्जैक्टली. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन or noun phrases which has already been mentioned or is already known. So pronoun क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पर noun की जगह और noun phrases की जगह जिन words का use किया जाता है we can call them pronoun. For example, he bought a car for himself. These are the museums you must visit in Delhi. In the above sentences, the colored words are pronoun. Pronouns के types पढ़ेंगे बच्चे. Pronouns के कितने कितने types होते हैं. Then following are the important types of pronouns. First one is personal pronoun. They are called personal pronouns because they stands for nouns in three persons. First person, second person and third person. First person के अंदर कौन आता है बच्चे, the refer to the speaker. For example, I, we, मी, माइन, अर्स, अस, इनको रेफरेंस करता है. मीन्स जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, फर्स्ट पर्सन वो रिप्रेजेंट करता है. सेकंड पर्सन कौन होता है बच्चे, जो सुनने वाला होता है. दे रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू. फॉर एग्जाम्पल यू, योर्स. और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, दे रेफर टू द पर्सन स्पोकन अबाउट. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, हिज, हिम, हर, देयर्स, देम, इट्स. I went to him and asked him if that pen was mine. She has chosen her books and you have yours. But where are ours? They came together but I could not see her among them. Then यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज कहाँ पर किया गया है. इन कलर्ड में जो लिखा है ब्लू कलर के अंदर, तो ये क्या है, ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इनको यूज किया गया है. देन सेकंड वन इज बच्चे, second pronoun reflexive pronouns. When the action done by a pronoun reflects upon itself, it is a reflexive pronoun. For example, the stag entangles itself. She gave herself a reward. मीन्स यहाँ पर क्या बताया गया बच्चे, यहाँ पर ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि इनका प्रभाव खुद पर ही पड़ता है इफेक्ट, तो इसलिए इनको रखते हैं इस कैटेगरी के अंदर. नेक्स्ट वर्ड होता है एम्फेटिक प्रोनाउंस. Emphatic pronouns is used to lay emphasis upon the subject itself. For example, we could cross the river ourselves. He himself climbed up the tree and plucked the sweetest mango. You yourself are a fine singer. So अपने आप यहाँ पर emphasize किसको करता है, सब्जेक्ट के अपने आप काम को. ओके, सब्जेक्ट इस सेल्फ ये emphasize करता है, तो इसी चीज को emphasize pronoun की कैटेगरी में रखा जाता है. नेक्स्ट इज know the ropes. For reflexive pronouns and emphatic pronouns are made by adding self or selves to some pronouns like my plus self, myself, your plus self, yourself, it plus self, itself, him plus self, himself,
और प्लस सेल्व्स, और सेल्व्स इनके साथ VES ही लगता है बच्चे, इनको सेल्व्स की कैटेगरी में ही रखते हैं। यू का जब बात करेंगे आप जैसे योर प्लस सेल्स के साथ तो योर सेल्स बनेगा, देम प्लस सेल्स देम सेल्व्स ही आता है हमेशा। हर प्लस सेल्फ, यहाँ पर हर सेल्फ होगा, सेल्व्स नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस points out the nouns, for example this, that, these, those। इनसे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी को पॉइंट आउट करके समझाते हैं। किसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पॉइंट आउट करेंगे और इसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बेबी हैड मैनी बॉल्स बट ही लाइक्स दिस एंड दैट ग्रेटली, Those were the students who won the contest। So यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही पॉइंट आउट किया जा रहा है, तभी हम यूज करें those का यहाँ पर। Next one is interrogative pronouns। Interrogative pronouns are used to ask question। For example who, whose, whom, what, which। इनसे हम क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चंस आस्किंग करते हैं। Who is at the door? डोर पर कौन है, तो हमारा क्वेश्चन आया। देन हमने किसकी हेल्प से बनाया, who की हेल्प से। Which is my bag? Whom did you see in the street? What is your name? Next one is relative pronouns। A relative pronouns is used to relate to a noun that has been mentioned before. For example, who, whom, which, that, etc. He is the boy who helped me with his notes. That is the question that nobody could solve. This is the hilltop which you could climb. He is a teacher whom everybody likes। So relate करते हुए एक ही चीज की बात दोबारा की जा रही है, किसी थिंग, पर्सन या प्लेस की बात अगेन रिपीट करके और उनको कोलैबोरेट किया जा रहा है, रिलेशन दिखाया जा रहा है उनका, तब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। नो द रोप्स के अंदर बच्चे द नाउन with which a relative pronouns relates is called a antecedents। For example, this is the table which she bought last week। In this sentence, we can see that which has been used for the table that has been mentioned in the sentence before. Here, which is the relative pronouns while its antecedents is the table। तो यहाँ पर antecedents की बात की गई है कि क्या antecedents होता है एग्जाम्पल को दिखाकर। नेक्स्ट वन इज indefinite pronouns। indefinite pronoun जो definite नहीं होता वो indefinite होता है बच्चे। An indefinite pronoun refers to a noun in a general or indefinite way। For example, anybody, many, each, other, few, little, etc. Everybody was in the meeting but for him। Somebody has come for the bill। You cannot blame all of them, can you? One must take one's responsibility at least। So यहाँ पर indefinite करके बात की जा रही है, तो इन वर्ड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे बच्चे, indefinite करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर anybody, many, each other का यूज किया गया है। Reciprocal pronouns। Reciprocal pronouns कैसे होते हैं बच्चे, when two nouns are used together to express a common relationship between them, they are called reciprocal pronouns। For example, each other, one another। The two girls quarreled and then grabbed with each other। All of us should help one another। So यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है बच्चे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बिना। तो इस तरह से क्या दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, रिलेशन शो कर रहे हैं। पिक योर ब्रेन के अंदर करने वाले हैं बच्चे ये एक्सरसाइज जो हमारी रिलेट करती है प्रोनाउंस को लेकर, तो इसको कंप्लीट करेंगे बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारा है प्रोनाउंस से रिलेटेड, जिसके अंदर हम पोजीशन और फंक्शंस जानेंगे। इसके प्रोनाउंस के फंक्शंस क्या होते हैं और उनके प्रॉपर पोजीशन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो सेंटेंस के अंदर। लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस टू आर गवर्न्ड बाय देयर फंक्शंस एज दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। They too can be used in place of nouns। They too can be used in the following capacities। So यहाँ पर केस के अंदर बता रहे हैं कि नंबर्स के बेस पर, नंबर कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देन सब्जेक्ट हमारा कैसा हो सकता है बच्चे, जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, जो स्पोकर होता है बच्चे, तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट हमेशा हमारा सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। अगर हमारा सब्जेक्ट मिल रहा है हमें सिंगल के अंदर, सिंगुलर के अंदर, देन आप इनको फॉलो करते रहेंगे, देन प्लूरल के अंदर इनको। तो अब ये देखना हमें कि किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल्स आगे कन्वर्ट होते रहे, तो कैसे वो ऑब्जेक्टिव की तरह अपोजिशन के बेस पर यूज होंगे। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं बच्चे।
फर्स्ट पर्सन में एग्जिस्ट करता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन आई और वी को याद रखेंगे। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट में यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में जाता है, तो आई जो है वो बन जाता है बच्चे मी, देन वी चेंज हो जाता है अस के अंदर, याद रखेंगे, ठीक है। देन उसी को पॉजेसिव में लेके आते हैं, तो इस आई को ही याद रखेंगे, बेस है बच्चे, तो आई चेंज हो जाता है पॉजेसिव के अंदर, माइन हो जाता है। देन उसके बाद प्लूरल होगा, वी का चेंज हो जाएगा आर्स के अंदर, गॉट इट। देन सेकंड पर्सन में चलते हैं। सेकंड पर्सन हमारा होता है यू। सेकंड पर्सन कौन हुआ? यू। अब यू जब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑब्जेक्ट में यू ही रहता है, नो नेवर चेंज इट। देन पॉजेसिव के अंदर जाके यू चेंज हो जाता है यूअर्स के अंदर, और प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो वो यूअर्स में ही चेंज होगा। देन थर्ड पर्सन की कैटेगरी में चलते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल के बेस पर। मस्कुलाइन मीन्स होता है ही कैटेगरी, मेल कैटेगरी बच्चे। मेल कैटेगरी का मतलब होता है ही में ही एग्जिस्ट होगी वो हमेशा, ही, ओके। देन फेमिनाइन की बात करेंगे तो शी कैटेगरी में ही एग्जिस्ट होगी। लाइक फीमेल की बात कर रहे हैं हम, किसी गर्ल की बात कर रहे हैं तो हमेशा आपको पुट करना है शी को। लेकिन न्यूटर की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, देन आप इट की कैटेगरी में उसको एग्जिस्ट करने वाले हैं, गॉट इट। देन प्लूरल्स में चलते हैं। आप प्लूरल कैटेगरी में हम रखने वाले हैं थर्ड पर्सन में ओनली ऑन दे को, दे, ठीक है। देन अब चेंज कैसे होगा? एज अ ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे तो ही चेंज होने वाला है, ये ही चेंज होगा हिम के अंदर, ओके। देन शी चेंज होने वाला है हर के अंदर, और इट ऑलवेज रिमेन सेम। देन दे देम के अंदर चेंज होगा, और हर जगह आप देखेंगे प्लूरल्स के अंदर देम का ही यूज होने वाला है। मीन्स एज अ ऑब्जेक्ट हम दे को यूज करेंगे कहीं पर तो देम ही आपने यूज करना है। लेकिन जब आप पॉजिटिव में लेकर जाएंगे तब इनका बिल्कुल जो फेस है वो चेंज हो जाएगा। ही चेंज हो रहा है हिज के अंदर, ओके, ही हिज के अंदर पोजेशन दिखाते हुए, पॉजिटिव दिखाते हुए। शी चेंज इनटू हर्स एंड इट चेंज इनटू इट्स। और दे जो चेंज होंगे बच्चे, ये सब देयर्स के अंदर चेंज हो जाएंगे इन पॉजिटिव केस के अंदर। अब देख लेते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और पॉजिटिव के बेस पर हम इनको कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट एज सब्जेक्ट देखते हैं, आई वेंट टू सर्कस विद हिम। देन यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आई को यूज किया गया है। ही कैन गो देयर इफ यू अलाउ हिम। कांति हेल्प्ड हिम विद सम मनी। रिटर्न मी ऑल माई मनी टुडे इटसेल्फ। एज अ पॉजिटिव के बेस पर, these books are ours and those are yours. These toys are mine and those are hers. अब इसी के बेस पर बच्चे पिक योर ब्रेन के अंदर दी गई है आपको एक्सरसाइज, ये कंप्लीट करनी है इसको समझते हुए। देन यहाँ पर भी है बच्चे, तो ये जो भी एक्सरसाइज है चैप्टर से रिलेट करती हुई पहले चैप्टर को समझेंगे थोरली और कंप्लीट करेंगे इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज को खुद से बच्चों।